and gentlemen, once again, on behalf of GMA, we once again welcome you all to the valedictory session on the theme Bharat. We request our distinguished dignitaries for the session to kindly grace us on the dais. Please put your hands together for our eminent chief guest for the session, Mr. Abhinav Gopal, Chief Development Officer, Ghaziabad. Can we have a huge Mr. S.K. Tiwari, President GMA and General Manager, Godfrey Phillips India Limited, and Mr. Rahul Agarwal, Executive Director, Ghaziabad Management Association. Let's have a huge round of applause for the august congregation of Legion leaders. Friends, as has been rightly said, leaders always choose the harder right. Our distinguished chief guest, Mr. Abhinav Gopal, Chief Development Officer, Ghaziabad. Can we have a thunderous, gushing round of applause for sir? Welcome, sir, to our congregation. Your presence has made it all the more glittering. Thank you so much for being with us. We request Dr. Rakesh Sharia, sir, to kindly introduce our eminent chief guest for the session. All right. So, words are very difficult to capture his numerous achievements, so we can have it later on. We request Mr. S.K. Tiwari, sir, to kindly welcome Mr. Abhinav Gopal by presenting him with a sapling, a symbol of... Thank you so much, sir. Can be achieved and inspires the power and energy to get it done. Thus, the road to success is not a path you find, but a trail you blaze. One such trailblazer is none other than Dr. Rakesh Sharia. It needs no introduction, I'll still try to give it a humble try. CA Dr. Rakesh Sharia ji is a distinguished leader in both education and business, serving in several prestigious roles, including Managing Trustee of INS Ghaziabad Group of Institutions, Managing Director of Sharia Group of Companies, and National Council members of IMA. He has also been Executive Member of Education Promotion Society for India and Uttar Pradesh Technical Institutions Federation. Sir has been honoured for his exceptional contributions to education and skill development with numerous prestigious awards and accolades such as Best Entrepreneur of the Year, Changemaker of the Year, Rashtriya Shiksha Ratna, Best Educationist. Well, the list goes on and on and on. All these awards have been bestowed to him by renowned organizations like ASSOCHAM, CEGR and many more. He has also received the Award of Honor for Excellence in Promoting Higher Education bestowed by senior judges of the Supreme Court of India. A renowned chartered accountant practicing since 1987, Sir also holds a Doctorate of Philosophy in Financial Management. His visionary leadership and unwavering dedication to education and business has made him a highly respected mentor and a transformational leader, inspiring and mentoring future generation. Can we have a gushing round of applause for our session chair, CA Dr. Rakesh Sharia ji. I request CA Anil Agarwal sir to kindly present a welcome sapling to him. This is what is known as greatness. Humility personified. Thank you so much, sir, for being with us. Convention is very challenging because all the time management exercise the valedictory session chairman has to do. पहले के जितने भी सेशन है, जितना भी टाइम लैग उन्होंने लिया, वो सब हमें मैनेज करना है, टाइम से प्रोग्राम कंप्लीट करना है और सबको इंगेज भी करके रखना है. बाय लक आज हमारे जो बीच हैं मिस्टर अभिनव गोपाल जी, इज ए CDO ऑफ गाजियाबाद. ही इज़ ए बेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं उनकी भी मदद लूँगा इस एक्सरसाइज में. माय डियर फ्रेंड्स, अभी T20 का टाइम चल रहा है और वैलिडिक्टरी सेशन T20 के लास्ट 2 ओवर्स के आप कंपैरिजन कर सकते हैं. अगर पहले सारे सेशन सक्सेसफुल हैं तो लास्ट वाला सेशन इज़ वेरी चैलेंजिंग कि आप कैसे इंगेज करेंगे. अगर पहले सेशन अच्छे नहीं गए हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग कि हाउ टू मेक द कन्वेंशन सक्सेसफुल. बट अनफॉर्चुनेटली आज के सारे सेशन इतने बढ़िया गए हैं कि हमारे पास कुछ करने के लायक नहीं है. हाउएवर वी वुड लाइक टू एंगेज यू.
Today's theme of this session is sustainable development and inclusive growth for Viksit Bharat. My dear friend, Viksit Bharat, everybody perceives it differently. Someone says it's self-reliant Bharat. Someone says it's self-sustained Bharat, electrifying Bharat, and healthier Bharat. And some says that it's Atmanirbhar Bharat. I would like to say that developed Bharat, we mean self-reliant Bharat, Atmanirbhar Bharat, is the same thing. But if we have to discuss about developed India by 2047, we will have to take this in a very holistic point of view. For developed India means economical prosperity, social harmony, technological advancement, and ecological sustainability. और जब ये चारों चीज़ों को हमें मैनेज करना है, हमें एक्सेल करना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से अकम्प्लिश नहीं हो सकती. We will have to focus on diversified area on which our government is doing it in a very dedicated manner. और हमारी 140 करोड़ जो जनता है वो सब डेडिकेशन के साथ इस की तरफ काम कर रही है. हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें एक्सेल करना है. हमें स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एरिया में, हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है. उसमें हमें R&D करके हमें वर्ल्ड में अपने आप को एक्सेल करना है. एंड वी आर डूइंग दिस. और इसी का रीजन है जो जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं. गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है 2047 तक, बट जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो दिन दूर नहीं की. बाय 2035 वी विल अचीव दिस. 2047 इज फार अहेड. वो तो उन्होंने टारगेट दिया है, बट वी विल अचीव दिस बाय 2035. बट इसके लिए वी विल हैव टू वर्क हार्ड इन ए कलेक्टिव मैनर. और जो आज का टॉपिक है इंक्लूसिव वे में ही हम इसको अचीव कर सकते हैं. इसके ऊपर अभिनव गोपाल जी भी अपने विचार देंगे. इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, मैं अभिनव गोपाल जी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन ही हैज जस्ट ज्वाइंड एज ए CDO गाजियाबाद इन October 23. इनका जो परिचय है वो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज ही हैज ज्वाइंड IAS आफ्टर कंप्लीटिंग BTech फ्रॉम IIT Chennai. He is a national level swimmer. He is a national level scuba diver. And he is the first IAS officer who has achieved Ironman 70.3 Goa award. He is the first IAS officer. मैं आपको बता दूं Ironman 70.3 गोवा क्या है. इसमें किसी को भी इस अवार्ड को लेने के लिए, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सबसे पहले 1.9 किलोमीटर स्विम करना होता है. और ये जितनी भी चीजें वो एट स्ट्रेच करनी होती है. 1.9 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, देन 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग, देन 21 किलोमीटर ऑफ रनिंग. एंड दिस कंप्लीट थिंग that person has to complete in 8.5 hours. 8 घंटे 30 मिनट में ये कंप्लीट करना होता है. एंड दिस आर CDO Ghaziabad has achieved this, and he is the only IAS officer in India who has achieved this. अभी मैंने इनसे बात की तो
दिस जो मैंने आपको बताया 1.9 प्लस 90 प्लस 21, दिस इज हाफ आयरनमैन 70.3. नाउ ही इज ट्राइंग फॉर फुल. इसमें हर चीज डबल हो जाती है. नाउ he will have to swim for 3.8 kilometer. He will have to do cycling for 180 kilometer and running for 42 kilometer in 17 hours. He is going for that during this year or next year. So you can just imagine the fitness of our Chief Development Officer Ghaziabad. He is hardly 30 years old. His first joining was Indian Forest Service in December 2018 to October 2020. He was Assistant Magistrate in Sambal from April 21 to 22. He served on deputation in Ministry of Petroleum from July 22 to October 22. He was Joint Magistrate, or you can say SDM, in Kanpur Nagar from October 22 to September 23, and fortunately from September 23 to this date he is CDO Ghaziabad. I have seen his working during election time. There is a group sweep जिनका काम होता है कि जितने भी वोटर्स हैं उनको हम जागृत करें कि वो जाके वोट दें, छुट्टी पे ना जाएं, वेकेशन पे ना जाएं और अपनी वोटिंग जरूर करें. उसमें 1.5 महीने मैंने इनके साथ वर्क किया और इनका मैंने डेडिकेशन देखा, इनकी वर्किंग स्टाइल देखी. आई हैव सीन सो मेनी IAS ऑफिसर्स, बट जिस तरह की वर्किंग इनकी है वैसी वर्किंग मैंने किसी की नहीं देखी. इन्होंने कोई कॉलेज नहीं छोड़ा जहाँ पे जाके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, स्टूडेंट्स, उनको उन्होंने मोटिवेट किया. सोसाइटीज़ में गए, इनके ग्रुप्स बनाए सो दैट माइक्रो लेवल पे सारी सोसाइटीज़ कवर हो जाएं, सारे कॉलेजेस कवर हो जाएं. इन्होंने और भी एसोसिएशंस में जाके भी सबको मोटिवेट किया. मुझे उम्मीद है कि अगर इनकी ये मेहनत नहीं होती तो जो वोटिंग परसेंटेज गाजियाबाद में हमने अचीव किया, विच वॉज टू लो, 3 से 4% वोटिंग और कम होती अगर इनका एफर्ट नहीं होता. तो मैं चाहूँगा कि गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एक्टिविटी. अदरवाइज एक धब्बा लग जाता गाजियाबाद के नाम पे कि इतनी कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई. अब मैं बुलाना चाहूँगा अभिनव गोपाल जी को कि वो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपने विचार रखें. लेकिन इनकी शख्सियत के लिए मैं इनके लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा. साहिल के सुकून से किसी को भी इनकार नहीं. सबको पीसफुल या कंफर्ट जोन में काम करने की आदत होती है. तो साहिल को के सुकून से किसी को इनकार नहीं, पर तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है. आई रिक्वेस्ट अभिनव गोपाल जी टू प्लीज कम एंड एड्रेस द. Thank you, Sharia sir. Distinguished people here on the dais, Mr. Rahul Agrawal, Mr. S.K. Tiwari, and I would like to thank the Management Association, the GMA, to invite me for this valedictory session. हालांकि मैं हिंदी में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ज़मीनी चीज़ों के बारे में बता पाऊँगा जिस टॉपिक के बारे में मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है. तो आप सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं? से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हिंदी में थोड़ा बीच में अंग्रेज़ी बोलता रहूँगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चेन्नई में पढ़ने का ये रहता है कि आपको अंग्रेज़ी बिना काम नहीं चल सकता, वहाँ हिंदी नहीं चलती है. और ज़्यादातर मेरे साथी तेलुगु और तमिल ही थे मेरे साथी, तो अंग्रेज़ी में ही कम्युनिकेशन हुआ करता था. तो इसलिए अंग्रेज़ी एक तरीके से वहाँ पर एक तरीके से एक फर्स्ट लैंग्वेज बन गई थी. तो बेसिकली जो आज टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हम विकसित भारत एट 100, जो कि इस अमृत काल में हम लोग लास्ट 25 ईयर्स में, लास्ट ही कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारे पास स्कोप नहीं है कि नहीं इसके बाद डेवलपमेंट, ये बात नहीं, डेवलप्ड होंगे ही 2047 तक.
जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आप सभी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना, जो कि यूएन ने इसको अडॉप्ट किया था, जिसमें 17 गोल्स बेसिकली, आप अगर इन 17 गोल्स को आप इफ़ यू गो थ्रू दी 17 गोल्स, आपको समझ में आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। हालांकि जब अगर आप इसको सिर्फ एक शब्दों को अगर तोड़ेंगे तो सस्टेनेबल मतलब जो चीज़ सस्टेन कर सकती है, जो चल रही है, जो एक जिसमें एक सोर्स भी है, एक्सपेंडिचर भी है, पर एट द सेम टाइम हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हमारा सस्टेन हम कर रहे हैं, जो एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए होती है। अभी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी जो सांस लेने वाली हवा भी है, हमारे पीने वाला पानी भी है। एक मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि यहाँ पे मैं एक जेंडर का मैं एक अच्छा एक दोनों तरफ से मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी भी इसका एक हिस्सा है कि यहाँ पर हर जेंडर, हर कास्ट, हर रिलीजन, उनका भी डेवलपमेंट हो। तो मैं क्या कह रहा था, सांस लेने वाली हवा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो, जो पानी पीते हैं हम, जिस सड़क पे चलते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ज़मीन के ऊपर की बात हो सकती है, ज़मीन के नीचे की बात हो सकती है, वो पानी के ऊपर बात हो सकती है, वो पानी के नीचे की बात हो सकती है। तो ये सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज। इनको सस्टेन्ड तरीके से इस्तेमाल करना, इनको इस तरीके से कंजर्व करना या इस तरह से यूज़ करना कि वो सस्टेन हो सकें या सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल हो सकें, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम समझ पाएंगे। क्योंकि हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं हमेशा। मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा इस पूरे प्रोसेस को और बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा करीब अब 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले मैं इत्तेफाक से फॉरेस्ट सर्विस में ही था, तो एक एनवायरनमेंट का भी एंगल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा एक तरीके का एक कॉन्ड्रम आप कह लीजिए, एक तरीके का एक विरोधाभास, अगर आप हिंदी में कहते हैं, रहता है कि डेवलपमेंट एक तरफ आपका एनवायरनमेंट। मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे अगर एक बस स्टैंड बनाना है उड़ीसा के किसी जंगल में, मुझे क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन ले जानी है, तो मुझे थ्रू दी नेशनल पार्क मुझे रेल लाइन ले जानी पड़ेगी। उसकी वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की जो हमारा एक विरोधाभास चीज़ चलती रहती है, डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट। यहाँ पे मेरे इंडस्ट्रीज़ के साथी बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री में हमेशा बात सुनते होंगे आपने ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सप्लाई नहीं दिया तो आपने ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया तो क्योंकि अब देखिए ग्राउंड वाटर तो अब खत्म होता जा रहा है, गाजियाबाद रेड जोन में चल रहा है, पानी है नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? अगेन फिर वही डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या मुझे पानी चाहिए, क्योंकि यही पानी आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। आप कहाँ? घर में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग में से कुछ लोग इंदिरापुरम में रहते हैं। अभी कुछ समय पहले आपको साया में एक समस्या आई थी, किसी कारणवश वहाँ पानी दूषित हो गया था और कई लोग बीमार हो गए थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हम इंडस्ट्री, यहाँ पे जो इंडस्ट्री के साथी बैठे हुए हैं, जो हम इंडस्ट्री में अपना यूज़ कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उसकी वजह से जहाँ हम रह रहे हैं साया में, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा हो, क्योंकि एक्विफर नीचे एक ही है। एक्विफर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी कह लीजिए नीचे रहती है, वो सेम एक्विफर है। तो अगेन वही बात आ गई, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बीच की बात। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन 17 गोल्स को मैं बहुत जल्दी जस्ट गो थ्रू, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ डिवेलेटरी सेशन है, इसको थोड़ा जल्दी आप लोग काफ़ी समय से सुन रहे हैं, लोगों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हम लोग का वैसे भी आज के सोशल मीडिया के समय में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन का जो एक टाइम है बड़ा कम हो चुका है, तो उसको मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा इस चीज़ को। पहला बिंदु है नो पॉवर्टी। पॉवर्टी नहीं रहनी है। यहाँ के एकेडमिया के लोग भी हैं, आप लोग एकेडमिया में इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी करते होंगे, इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पर हैं, प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर हैं। एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, तभी तो डेवलपमेंट होगा। जब इनकम बढ़ेगी तभी तो आपके जो इंडस्ट्री में सामान बन रहा है, वो भले ही हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो MSME हो, उसका सामान बिकेगा, मार्केट तो वहीं से चल रही है। जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, जब तक पॉवर्टी खत्म नहीं होगी, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड जो मेजरली करते हैं वो आप लोग करते हैं। तो वो जो नो पॉवर्टी का गोल है, सस्टेनेबल गोल है, वो यहीं से शुरू होता है। अब ये 17 गोल्स मैं बोलूँगा, ये सब इंटरवोवन है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो नो पॉवर्टी कह लीजिए, जीरो हंगर कह लीजिए, वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात कह लीजिए, आप उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लीजिए, जेंडर इक्वालिटी की बात कर लीजिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर लीजिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात कर लीजिए।
क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपको मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल गाजियाबाद स्पेसिफिक आपको बताता चलूंगा इसका। जैसे मैंने आपको भी बताया गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। अब इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे सोचते हैं? आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड हेल्थ में क्या फर्क हो सकता है? मतलब क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीस टू? मैम आप कुछ अगर बताना चाहें इसमें, व्हाट डू यू थिंक? गुड हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ भी एज एन व्हाटएवर कम्स इन माइंड आप बोल सकते हैं। एनीवन? हाँ, पोल्यूशन, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप कितने AQI में जी रहे हैं हम सब? 450 प्लस, मतलब जो हमें नहीं पता, शायद कई एरियाज में 500 प्लस भी जाता होगा जब हमारा पोल्यूशन का समय होता है। इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन 2047? क्या हम अगले अमृत काल में 400 प्लस, पता चला वो 700 प्लस AQI चला जाए, क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री की तरफ से, क्या हमारी एकेडमिया की तरफ से, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम लोग जो भी डेवलपमेंट करें या जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें उसमें ध्यान दें? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैठे मैंने बहुत अच्छा एक चीज़ देखा, यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स नहीं है। मैं बहुत ज़मीनी एग्जाम्पल की बात करूँगा, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगा आपसे, बिकॉज विकसित भारत अगर आपको देखना तो पहले आपको मतलब विकसित घर देखना पड़ेगा, विकसित होटल देखना पड़ेगा, विकसित लोकल कम्युनिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स नहीं है, ये पहला स्टेप है आपकी जिंदगी में प्लास्टिक को हटाने का, सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का। दिस इज वेयर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में जा रहा होगा। जब ये आप यूज करके फेंक देते हो तो ये भी कहाँ मिल जाता है? मैंने स्क्यूबा डाइविंग का, मैं सर्टिफाइड डाइवर हूँ, मैं जब जाता हूँ नीचे पानी में तो कुछ नहीं दिखता मुझे, प्लास्टिक दिखता है मुझे, ब्लीच्ड कोरल्स दिखते हैं। यही प्लास्टिक बॉटल जो हम यहाँ यूज करते हैं वो कहीं पे तैरते हुए दिखते हैं वहाँ समुद्र के अंदर। तो जो मैं कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ, आपने क्योंकि बात करी पोल्यूशन की तो मैं इधर चला गया, लेकिन हम बात कर रहे थे हेल्थ की, बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हेल्थ की बात आती है। जब आप, क्योंकि गुड हेल्थ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसलिए जुड़ा हुआ है। साफ हवा को लेने का अंदर, साफ पानी को लेने का। आपको क्या लगता है, आप लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं? मैं जानना चाहूंगा आप लोग कहाँ रहते हैं? इंदिरापुरम, एनीवन? कितने लोग रहते हैं? ठीक है, कविनगर, कविनगर रहते हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों को कितना ग्राउंड वाटर का कितना लेवल है नीचे, या उसका TDS कितना है? कभी आपने जानने की कोशिश करी है? या इवन जो इंडस्ट्री जहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पर कभी जानने की कोशिश करी है आपने उसकी? बताएं अगर आपको कुछ आइडिया हो इस चीज़ के बारे में। 600-700 TDS सर। 800, 800, बताइए कहाँ पर आप बता रहे हैं, कहाँ पर है ये, किस एरिया में? कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 600 प्लस। और आपको पता है जो पोर्टेबल वाटर आप पी रहे हैं वो कितना TDS होना चाहिए इसका? 150। हाँ, 150 आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आपके फिल्टर से निकलता है उसका TDS कभी चेक करिए। वो 150-200 होता है। 100 से 150 के बीच करीब आपका वो वेरी करता है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ वाटर यू हैव इन द ग्राउंड वाटर। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की बात हम कर रहे हैं, जो गर्भ की बात करें, भूगर्भ की बात कर रहे हैं, उसमें इस तरह सिचुएशन। तो ये आपका गुड हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए गुड हेल्थ इज रिलेटेड टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट से गुड हेल्थ की बात आती है? इसी में गुड हेल्थ, क्योंकि देखिए मैंने सारे पॉइंट क्यों बोले, फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है। क्वालिटी एजुकेशन क्यों? क्वालिटी एजुकेशन से ही बात समझ में आएगी कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे यहाँ साथ ही शायद कुछ लोग कॉलेज से भी आए होंगे, मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे एकेडमिया से भी लोग हैं। डेफिनेटली आप लोग काफ़ी इस पर रिसर्च भी करते होंगे, आप लोग बातें भी करते होंगे, आप लोग काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे इस चीज़ के ऊपर। क्वालिटी एजुकेशन तभी आएगी जब क्वालिटी एजुकेशन से आपकी पॉवर्टी, मतलब एजुकेशन से ही पॉवर्टी है, उसी पॉवर्टी से खत्म करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सही चीज़ की डिमांड पैदा होगी और सही जानकारी होगी, तभी आप लोग समझदारी से पानी, हवा और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट इज वेयर द क्वालिटी एजुकेशन कम्स इन द पिक्चर। यहाँ पे आप सभी का, हम सभी का बहुत बड़ा रोल है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मैं आप सिर्फ घर तक की सीमित की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कई एजुकेशन यहाँ पर हैं, आप लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट में भी हैं, आप उसको हेड भी कर रहे हैं यहाँ पे कई लोग। तो आप यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इस क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं उससे जोड़ें, उनको समझाएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज राइट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर कोजी एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम एसी में बात कर रहे हैं, बड़े आराम से एसी चल रहा है, बाहर वहाँ शायद कोई आदमी वहाँ पर सड़क पे हीट वेव से बीमार हो रहा होगा, शिकार कर रहा होगा, पानी नहीं है उसके पास पीने के लिए।
इट्स वेरी इजी, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। नाउ इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी भी रिड्यूसिंग इस SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ये भी वन ऑफ द 17 गोल्स हैं, इन्हें भी हमें चीज़ देखनी होगी। खैर देखिए, बहुत थ्योरी की बातें मैं इसमें कर भी रहा हूँ, साथ साथ इसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की हम बात कर ही चुके हैं, इसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात हम अभी करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा सोलराइजेशन की बातें हो रही हैं। इवन इस समय एक स्कीम भी चलाई जा रही है सरकार की तरफ से कि आप लोग सोलार पैनल्स लगाएं। आपको पता है जो हम बिजली ये देख रहे हैं, ये बिजली कहाँ से आ रही है? कोई मुझे बताना चाहेगा बिजली कहाँ से जनरेट हो रही है? एनीवन? एग्जैक्टली, हाइड्रो पावर का बहुत परसेंटेज बहुत कम है मैम। अगर आप मान लीजिए आपकी 100 किलोवाट या 100 मेगावाट आप कह लीजिए, उसमें से कितने परसेंट आपको लगता है कि कोल से जनरेट हो रहा है? कोल कितने? 70%, ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन, जो एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है वो कोल से जनरेट हो रही है। तो हमें लग रहा है कि हम काफी कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिस इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं वो कोल से ही जा रहा है, और उसी कोल के पावर प्लांट से ह्यूम्स भी होते हैं, तमाम चीज़ें ऑब्वियसली एफर्ट्स लिए जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि बिल्कुल 100% वो एनर्जी न्यूट्रल चल रहा है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ये भी तो इसीलिए बात आती है यहाँ पर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी कहाँ से आ सकती है? हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट लोकलाइज सोल्यूशन है वो सोलार है। तो क्या हम अपनी इंडस्ट्री को, क्या हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, क्या अपने घर को जहाँ हम रहते हैं, क्या हम सोलराइज नहीं कर सकते हैं? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। आप सभी फाइनेंशियली यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल जो समझने वाले, बैलेंस शीट समझने वाले आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, एक छोटा सा आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का या 5 किलोवाट का अगर आप सोलार पैनल ऊपर लगाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बिजली का बिल कितना कम होगा, और उसकी वजह से आपके जो नॉर्मल बिजली आप ले रहे हैं उसको कितना कम कंज्यूम करेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स बता देगी कि आप एक्चुअली प्रॉफिट में हैं। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देखते हैं, 5 इयर्स या 10 इयर्स के आप उसमें पूरे अंतराल में देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो आपके लिए फेवरेबल है। और दिस इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड दैट इज वाई क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी इज पार्ट ऑफ इट। अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने इसको सब्सिडाइज भी कर रखा है, इसीलिए जिससे कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ मेनी ऑफ माई इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हाउ मेनी कैन से कि मेरे पास, मतलब गर्व से कह सकते हैं कि मेरे पास जो एक एनवायरनमेंट है, मेरे पास जो एक वर्क प्लेस है या मेरी वर्क फोर्स है, बहुत खुश है। मेरी वर्क प्लेस बहुत अच्छी है, वहाँ पे क्रैश फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ पे मैंने उनको हर किसी को मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखा है। कैन एनीवन से 100% करा रखा? थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ से हैं? श्रीराम पिस्टन। आपसे मुझे शिकायत भी है तो बताऊँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर की बात कर रहे थे। आपने वैसे बहुत हेल्प करी है, डन अ लॉट फॉर दिस सिटी, और मैं डेफिनेटली उसके लिए मैं काफ़ी तारीफ भी करना चाहूँगा कि बिकॉज दे हैव डन अ लॉट फॉर दी वेस्ट मैनेजमेंट एंड दे हैव हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन लॉट इन ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन के लिए भी। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे जब आप अपने वर्क फोर्स को एक बेसिक कम्युनिटी प्रोवाइड कराते हैं, जब उनको बेसिक चीज़ें देते हैं, तब आपका एक इक्विटेबल ग्रोथ होता है, तब जाके एक सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं। फिर आती है आपकी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब खैर क्योंकि मैं इस पे नहीं जाके थोड़ा सा मैं डेविएट करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले एक डिस्कशन चल रहा था, वी हैड अ डिस्कशन विद द म्युनिसिपल कमिश्नर सर एंड वीसी, मेनी पीपल वर देयर, और डीएम सर भी बैठे हुए थे। तो मेरा डिस्कशन की हम सोचने लगे कि गाजियाबाद को हम कैसे देखते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स, हम कैसे देखते हैं जब हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें आप लोग बड़ी प्रेवलेंट हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 8 महीने से। वो पोल्यूशन हो सकता है, वो ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, वो कंजेस्टेड रोड्स हो सकती हैं, वो इनइक्वालिटी हो सकती है, राइट? ये सारी चीज़ें आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं। और यहाँ पर एक तरह से रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया भी काइंड ऑफ इंटरस्पर्स्ड हो गया है, मिलता जा रहा है। अगर आप कभी नगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकले, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया से निकले, वो लगता नहीं, क्योंकि मैं एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गया था तो मैं इंडस्ट्रीज के थ्रू निकल रहा था। मैं अच्छा ठीक है, मतलब कि स्कूल भी इंडस्ट्रियल एरिया में अब मिल चुका है, मतलब आपके बच्चे भी उसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे ट्रकें खड़ी रहती हैं, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो
तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट जो ये थोड़ा सा हमने जो किस तरह सोचा था, शायद हमने प्लानिंग बहुत दीर्घ नहीं करी थी, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करी थी। वो हम यही सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्रीज को बाहर कर दें। इंडस्ट्रीज को मतलब हम लोग ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री भी एक स्टेक होल्डर है। आपको लेबर कैसे मिलेगा, आपको पानी कहाँ से मिलेगा, आपको बिजली कहाँ से मिलेगा, आपको रोड्स कैसे मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वहाँ ट्रेन्स कैसे पहुँचेंगी, वहाँ पे ट्रक्स का आपकी कैसे जो आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वो उसका कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेंगे। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बात करूँगा। तो हम लोग इस चीज़ में बात करने लगे कि क्या इंडस्ट्रियल एरिया को हमें बाहर कर देना चाहिए, क्या हमें रेजिडेंशियल एरिया को बढ़ा देना चाहिए। तो बात आई कि क्या हमें अलग से पूरा एक डेवलपमेंट मॉडल तैयार करना चाहिए, या हमें जो हमारा ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है या नया डेवलपमेंट होने वाला है उसको हमें मिला के सोचना चाहिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए। आप मास्टर प्लान की बात जानते होंगे। मास्टर प्लान, आई नो एवरीवन वुड बी नोइंग मास्टर प्लान, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप लोग काम करते हैं, आप लोग ये बिल्डिंग के नक्शे पास होते हैं, जीडीए से तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट आता है, जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बात आएगी स्टेक होल्डर। इसमें हमें इंडस्ट्री से भी बात करनी पड़ेगी, इसमें हमें अकेडमिया से भी बात करनी पड़ेगी, इसमें हमें प्रोफेशनल से भी बात करनी पड़ेगी। एंड आई एम वेरी ग्लैडफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि व्हेन आई गॉट टू नो कि गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन एक तरीके से इस ब्रिज का काम कर रहा है, जहाँ पर ये 3 या 4 स्तंभ एक तरीके से मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका हिस्सा बना के शहर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था कि हमें एक तरह का फीडबैक मिले, बिकॉज राइट नाउ वी आर थिंकिंग कि हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। वो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या हम गाजियाबाद को पूरे 50 से 60 किलोमीटर की पेरिफेरी में देखते हैं? इंडस्ट्रीज हम कहाँ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी एक्सपैंड होंगी। क्या हमें एमएसएमईज को अंदर रखना है, क्या हमें हैवी इंडस्ट्रीज को बाहर ले जाना है, रेसिडेंशियल एरिया में कहाँ डेवलप करना है, पानी हम कहाँ से लाएंगे, बिजली हम कहाँ से जनरेट करेंगे। ये तमाम तरह के सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास देखिए जादू छड़ी नहीं होती कि वो बताता है, आप ही लोग हमें फीडबैक देते हैं। और ये मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग इस चीज़ के बारे में आगे, मैं इसको चाहता हूं कि कंटिन्यूड डिस्कशन के रूप में, कंटिन्यूड डायलॉग के रूप में होना चाहिए हमारे बीच, इंडस्ट्री के बीच, मैनेजमेंट के बीच, एकेडमिया के बीच, प्रोफेशनल्स के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। क्योंकि आप लोग हमें फीडबैक देंगे कि क्या इशूज़ आते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस भी रहते हैं, कई लोग से मिल भी चुका हूँ। यहाँ पे मुझे स्वीप के टाइम पे मैं काफ़ी लोगों से यहाँ मिला भी था, स्वीप की एक्टिविटीज़ के दौरान, और उस टाइम पे बात भी हो रही थी कि यहाँ पे इतनी समस्याएं होती हैं, वैसी प्रॉब्लम होती है, वैसी प्रॉब्लम होती है। बट राइट नाउ दिस इज़ द टाइम, जब हम इस प्लानिंग स्टेज में, जब ये हॉट टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा एक अब कूल डाउन टाइम आ गया, एक अच्छा टाइम है जिसमें हम लोग अपना थोड़ा होमवर्क करें। एग्जैक्टली हमें करना क्या है, आप लोग क्या इशूज़ फेस कर रहे हैं। लेट इट बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एक बहुत मैं कहूँगा सिस्टमैटिक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है हम लोगों को। और ये प्लेटफॉर्म में शौर्य साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आपके फीडबैक्स दें इसमें। और मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एकेडमिया को भी कहूँगा कि आप लोग गाजियाबाद के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स हैव समथिंग, लेट्स हैव सम डिस्कशन। सारे जो हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं, वो टेक्निकल कॉलेज हो सकते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हो सकते हैं। अलका मैडम बैठी हुई हैं यहाँ पर, आपसे मेरी इतनी बात होती रहती है। मैडम आप भी अपने कॉलेज में, वी नीड टू डिस्कस गाजियाबाद को हर आदमी कैसे देखता है। लेट देम गो बैक, अपने लोकल एरिया को देखे, वो अपने घर को देखे, अपनी सोसाइटी को देखे जहाँ पे वो रहता है, मतलब चाहे वो हाई राइज हो, चाहे वो आपका बंगलो वाला हो, चाहे वो आपके बगल में कोई स्लम एरिया हो, आप लोग कैसे देखते हैं। इसको डिस्कशन करिए, इसको हमें डायलॉग लाने की आवश्यकता है। लेट्स हैव एक टाइमलाइन लेते हैं, 1 महीने का टाइम लेते हैं, इसको एक डायलॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स हैव फीडबैक, सम काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट बन सकता है, एक पीपीटी हो सकता है, मे बी वी कैन मीट आफ्टर 1 मंथ, जिसमें हमारे जितनी भी मेजर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री एक है, तो इंडस्ट्री के हमारे 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, वो हमें बताएं एग्जैक्टली हाउ डू दे सी गाजियाबाद इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये एक्सरसाइज मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं कानपुर में था। कानपुर में कमिश्नर कानपुर, कमिश्नर कानपुर, उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी कानपुर एट 2047, एंड वी ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने एक्सरसाइज चली थी। एंड वी इन्वाइटेड एवरीवन, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री को हमने एक पूरा कन्वेंशन कराया था, काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री का कराया था। हमने स्पोर्ट्स तक की चीज़ें बात करी थी, हमने एजुकेशन की बात करी थी, हमने हेल्थ की बात करी थी। हाउ डू वी सी कानपुर एट 2047, बल्कि कानपुर से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है। कानपुर में भी IIT कानपुर था, HBTI था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस थे, डेफिनेटली नंबर्स यहाँ ज़्यादा हैं, एंड वी हैव यहाँ पे ज़्यादा ब्रेन है हमारे पास, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाजियाबाद इज द इंडस्ट्रियल सेंटर, कानपुर हुआ करता था,
लेकिन गाजियाबाद अब है, गाजियाबाद अभी भी जीवित है और गाजियाबाद आगे भी रहेगा। एनसीआर का हिस्सा है। एक सिम्बायोटिक रिलेशन हमें डेवलप करनी है एनसीआर के साथ। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें डेवलप करनी है, सरकार ने बहुत चीज़ें प्लानिंग कर रखी है, बट हम गाजियाबाद को कैसे दिखते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी डायलॉग चल रहा है गवर्नमेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए हमें ज़रूरत है कि आप लोग से हमें ये फीडबैक की आवश्यकता है। तो लेट्स टेक अ 1 month टाइम। इंडस्ट्री के 3-4 हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो एक पूरा आइडिया को गैदर करके हमें पास आएँ। लेट्स हैव कुछ नहीं, छोटा सा हम लोग इंडस्ट्री के हो जाएंगे, कुछ एकेडमिया के हो जाएंगे, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्तर से उसे वेट करके लाएं। वेट करके आप लोगों को लगता है वो बड़ा पिन पॉइंट होना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी लोग सोचते हैं, क्या आप देखते हैं गाजियाबाद 2047 में, और लिमिट मत करिएगा शहर तक अपने आप को। आप इसको मेरठ को भी देखिए, बुलंदशहर को देखिए, हापुड़ को देखिए, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग। तब जाके आप एक 25 ईयर्स की बात की प्लानिंग देख सकते हो। बिकॉज हमारी प्लानिंग आज क्यों फेल हो रही है? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट 1976 में बना था। जो आपके पुराने लोग हैं बताएं जरा मुझे, कवि नगर और ये नेहरू नगर और ये सब कब स्टैब्लिश हुआ था? ये कब पूरी योजना बनी थी? कोई पुराना बताना चाहेंगे यहाँ पे? 80s में, राइट सर? 80s में। तो मतलब हमारी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं 30 इयर्स में धराशायी हो गई कि नहीं हो गई? आसपास स्लम्स बन गए, आसपास हमारा एक्सपेंशन के लिए जगह ही नहीं बची है, पूरा क्रंच हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो प्लानिंग करनी होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए नेक्स्ट 40 इयर्स 50 इयर्स की करनी होगी, उसको सोच के करनी होगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत जाएगा कहाँ, गाजियाबाद किस तरफ जाएगा। क्या गाजियाबाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी या सर्विस सेक्टर बढ़ेगा? क्या वो AI बेस्ड होगा या एकेडमिया के लिए हमें और जगह चाहिए होगी? क्या हमें जो अगर इंडस्ट्री है तो उसमें जो काम करने वाले हमें लेबर क्लास है, लेबर क्लास को हम कहाँ उनको रेसिडेंशियल एरिया देंगे, उनको हम एजुकेशन कहाँ देंगे, उनको हम कहाँ क्वालिटी हेल्थ देंगे? ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो मैं आई थिंक इसी के साथ एंड करूँगा कि इस डायलॉग को हम लोग इसको एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। लेट इट बी अ स्टेपिंग स्टोन। 1 महीने का समय लेते हैं, एक आप अपनी तरफ से नोडल कर लीजिए, हम लोग इसको अपनी तरफ से नोडल कर लेते हैं। एक फीडबैक सेशन, एक काइंड ऑफ 1 महीने बाद हम पूरा प्रेजेंटेशन लेंगे। एंड I'll request my seniors also, municipal commissioner sir, VC sir, DM sir, they'll be also there। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक हेल्दी कम्युनिकेशन बना के रखें। बिकॉज अभी क्या है कि मैं मान के चलता हूँ एक बहुत कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री के बीच। वो बड़ा इंटरस्पर्स टाइप का, मतलब बड़ा ही इंटरमिटेंट टाइप का है। चलिए ठीक है, 2 महीने बाद मिल लिए, एक मीटिंग हो गई, बात हो गई, खत्म। फिर आप अपनी लाइफ में बिजी, हम अपनी लाइफ में बिजी। हम अपना स्कीम चलवा रहे हैं, आप लोग अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप लोग एकेडमी चला रहे हैं, तमाम चीजें। लेट इट बी अ कंटिन्यूड डायलॉग। हम लोग क्यों ना महीने में एक दिन डिसाइड कर लें, लेट इट बी अ 3rd Saturday, 4th Saturday, लेट्स मीट, कुछ हम बात करें, कुछ आपकी तरफ से हमारे पास आए, कुछ हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करें, मे बी सभी को, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर। शायद हो सकता है कि हम अभी 4 स्टेक होल्डर्स बात कर रहे हैं, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। तो हम उनसे बात करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तब हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हम भारत 2047 की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम गाजियाबाद 2047 की बात करें। तब जाके हम इस पूरे परिकल्पना को, इस पूरे विजन को सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है, हमारे लिए बड़ा एक मैं कहूँगा कि कोहरा टाइप का है। कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा दिखेगा गाजियाबाद। अभी बड़ा ही एडहॉक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, उस चीज़ को हमें स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, उस चीज़ को हमें करना है। तो थैंक यू सो मच गाजियाबाद फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो हमारे दिमाग में जंग लग जाती है। तो इस तरह की जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, एक तरीके से हमें ऑयलिंग करने की कोशिश करनी पड़ती है। इससे चक्कर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ भी लिया फिर से। अच्छा, इसके क्या क्या बिंदु थे ये भी मुझे याद आ गया। अब इससे याद आया कि नहीं यार, तुम तो IAS ऑफिसर हो गए, तुम यहाँ सिर्फ इम्प्लीमेंट करने तो आए नहीं थे, कुछ विजन देख के भी आए थे। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। हम इसमें रेवोल्यूशन लाते हैं और उनकी बात बिल्कुल सही है कि वी ऑल टॉक अबाउट डेवलप्ड इंडिया एट 2047। उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वी विल हैव टू गो इन माइक्रो लेवल। हमें ये फोकस करना है गाजियाबाद एट 2047। हम अपने अपने एरिया को उस टारगेट को अचीव करने का प्लान करेंगे, तब जाके इंडिया डेवलप हो पाएगा। और जो आपने कहा मुहिम छेड़ने की, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, विल मेक ए ग्रुप। गाजियाबाद इज ए एजुकेशन हब, गाजियाबाद इज ए इंडस्ट्रियल हब, एंड इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी कि आप जैसे ऑफिसर गाजियाबाद में हैं जो कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।
तो हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे। हम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, उनको हम जोड़ेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट एंड वी विल बी सक्सेसफुल। इंडस्ट्री और एकेडमिया की बात ठीक है, बट जब भी हम गाजियाबाद के आसपास के एरियाज को भी कंपेयर, तो गुड़गांव इज डेवलप्ड, नेक्स्ट कम्स द ग्रेटर नोएडा, नॉट इवन द नोएडा, और गाजियाबाद में एमएनसीज के नाम पे जीरो, सर्विस सेक्टर इज जीरो। जब एजुकेशन से बच्चे जब निकलते हैं गाजियाबाद के, तो वो आइदर सब अधिकतर मोस्ट ऑफ देम दे आर इन बेंगलोर, थोड़े बहुत जो बच गए पुणे, और जो बिल्कुल बच गए या फिर गुड़गांव या नोएडा तो लास्ट में, गाजियाबाद तो जीरो। तो अगर हम वाकई हम 2047 की हम बात कर रहे हैं, और एकेडमिया की राकेश जी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात करें, मेरे ख्याल से सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि गाजियाबाद में जीरो है आज की तारीख में, और बच्चे या मैनेजमेंट और वट एवर में भी उनको इंडस्ट्री में आज की तारीख में हर एक को एवरीवन वांट्स टू गो टू व्हाइट कॉलर जॉब। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना ठीक है that जी। is one. उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे ना, एंड वी आर विद यू, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम नगर आयुक्त जी को भी जोड़ेंगे, डीएम साहब को भी जोड़ेंगे, यूपीएसआईडीसी को भी जोड़ेंगे, और सबको साथ लेके और इंक्लूसिव एफर्ट करेंगे, और उससे हमारे गाजियाबाद की सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। हो सकता है कि इससे, देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए हर किसी की यहाँ कुछ ना कुछ एक खटास रहती है, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या हमारा कभी नहीं रहा होता है उस तरीके से। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए जब हम सिम्बाइटिकली चलते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं, तब हो सकता है हमें 100% ग्रोथ ना मिले, लेकिन अगर हमें 2% या 3% ग्रोथ भी मिलती है तो वो ग्रोथ होती है। हमें उस चीज़ को देखे चलना है, हमें धीरे धीरे आगे चलना है। हम एक बार में गाज़ा तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे, जैसे आपने सर बात करी, सर्विस सेक्टर की बात करी, यही बात हो रही थी, क्या हम ऐसा लैंड बैंक डेवलप कर सकते हैं इवन बियॉन्ड, बेसिकली मे बी 20 किलोमीटर्स बियॉन्ड के टाइम पे, हापुड़ के आसपास या बुलंदशहर के आसपास, जहाँ हम सर्विस सेक्टर को दें लैंड, या हम हेवी इंडस्ट्रीज को दें लैंड, मतलब जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, और उस तरीके से हम स्कीम डिवाइड करें। क्योंकि देखिए गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि उस समय वहाँ की सरकार ने इस तरह की स्कीमें चलाई, इस तरह की इतनी ईजिली उनको अवेलेबल कराई लैंड, इस तरह के इंसेंटिव्स दिए कि इंडस्ट्री वहाँ पे आके, थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन अभी भी इतने लेट नहीं हुए हैं। अगर अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से पॉलिसीज, अगर आप लोग जैसे देखिए, पॉलिसीज तभी अच्छी बनती है जब वो इंक्लूसिव होती हैं, जब विन विन सिचुएशन होती है हम सब के लिए, मेरे लिए भी होगी, वो आपके लिए भी होगी, किसी के लिए भी होगी, तभी हम एक अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। तभी हम गुड़गांव, या उससे देखिए गुड़गांव शुड नॉट बी आर क्या कहते हैं लैंडमार्क, और जो स्टैंडर्ड बेंच स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए हमारा, ये should be aiming for something like सिंगापुर है। कौन सिंगापुर तक देखिए, सिंगापुर देखिए आप, इतनी छोटी सी कंट्री है, क्या जीडीपी है पर कैपिटा तय है, वो यूएस से भी ऊपर है। तो मैं इस सेशन को केवल इस बात से खत्म करूंगा, इनकी तरफ से कहते हुए, वक्त आने पे बता देंगे तुझे वो आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं अरुण जी से कहूँगा इस सेशन को आगे बढ़ा के वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहें। जी सर। आपका विकसित भारत के स्वप्न को अचीव करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल से ही अपने एफर्ट्स को स्टार्ट करना होगा। इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतने क्रिस्टल क्लियर थॉट्स आपने हम सभी के साथ साझा किए। आपका अनेक अनेक आभार। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अभिनव गोपाल जी के लिए, and simultaneously can I also request you all to have a standing ovation for all our speakers for GMA convention. This is specifically the valedictory session. Thank you so much. And Matrabhasha is also inspired. Directory of Ghaziabad Management Association. Please. We also request in being better connected with each other. I request all the governing council members also to kindly. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. We are about to close the valedictory session. Thank you so much, dignitaries.
for your gracious presence. We request you all to kindly stay back on the dais for the very our eminent sponsors. Without their support, it would have been impossible for us to organize today's session. Board sponsor for today's event, Televisions and Drinks Limited, to kindly join us on the dais and accept a small token of gratitude from us. Shri Ram's Pistons and Drinks Limited, again the board sponsor for today's event. We have with us Dr. Pandey. So can you please join us on the dais, please? Here comes Dr. Pandey. Ajay Kumar Garg, Institute of Management. Next up we have Institute of Management Studies, again the board sponsor for 34th GMA Annual Convention. Institute of Management Studies, IMS Ghaziabad. Can we have a loud round of applause for IMS Ghaziabad? Times I should control myself. Follow. Institute of Management Technologies, IMT, again the board sponsor for today's event. Can we have our representatives from IMT to IMT Ghaziabad, followed by Ghaziabad Precision Products Limited, the board sponsor for today's event. Ghaziabad Precision Products Limited, GPPL, our silver sponsor for the event, CCIL. A round of applause. Carbon Comprehensive. Kumar Goyal Institute of Technology, RKGIT, the silver sponsor for today's event. Yes, here comes Dr. Vibhuti Tyagi, all set to accept the award. Thank you so much, ma'am, for your gracious contribution. We have Micromatic Grinding Technologies Limited, the silver sponsor for today's event. Micromatic Grinding Technologies Limited. Mr. R.K. Mahajan, can we have you? Diagnostic Automations and Controls. The first prize goes to the team from NTPC Limited, Mr. Shiv Shankar Kachak, Vasu Goyal, Divyam Gupta and Ankit Tiwari. The second prize goes to AKGIM. Can we have a round of applause for CA Ethan Sahuman, Professor Rahul Singhal, Professor Pankaj Chauhan and Ms. Divya Goyal. The team from AKGIM, can we have you on the dais, please? A round of applause, ma'am, Professor Rahul Singhal, Professor Pankaj Chauhan and Ms. Divya Goyal. The third prize has been backed by ITC Limited, the team comprising of Mr. Harshit Gupta, Ms. Sapna Chaudhary, Mr. Nikhil Sharma and Mr. Akshay Khashu. Can we have the ITC team also on the dais, please? Can we have a round of applause for the winners of the Congratulations, team
have a gushing round of applause for Mr. Abhinav Gopal, Chief Development Officer, Ghaziabad, for his gracious presence. We request our dignitaries to kindly present a token of gratitude to Abhinav ji. Thank you so much, sir. It would be our honor to present a token of gratitude to Session Chair to kindly felicitate sir with a small memento. Words would be sufficient, sir, to express our gratitude towards you. The session wouldn't have been possible, today's convention would have been possible without the keen insight Executive Director, Ghaziabad Management Association. It would be our honor to felicitate him. We request Mr. Alok Saxena and our other dignitaries to present a token of gratitude to Mr. Rahul Agrawal, sir. Tobacco Company. For contributions in advertisements, these are the significant contributions for today. International Tobacco Company, contributions in advertisements. Thank you so much, sir. We have with us to please join us on the dais. It is our honor to felicitate CA Anil Agrawal, sir, for organizing the. Can we have a round of applause, please? Thank you, sir. Thank you, Anil, sir. For announcing the next award, I request Mr. Rahul. Special award. So I wanted to speak something about that award. I'll narrate a story which is of this financial year, for which we are celebrating the annual convention 23-24. So on October 5th, 2023 evening, I received a call from our president, Mr. S.K. Tiwari, to come to GMA office next day morning. So when I reached GMA office, I was told that Mr. Vinay Gupta ji has expressed to step down from GMA ED chair, and governing council took a decision to give this opportunity and responsibility to me. I was shocked and surprised to put myself in the shoes of veteran Mr. Vinay Gupta ji. First of all, I am thankful to GC committee to believe in me. In last 8 months, I have tried to continue the legacy of Mr. Vinay Gupta ji. Sorry. Who was the executive director for 13 years and received the ship of GMA. Mr. Vinay Gupta is my mentor, advisor to run GMA office. Due to his guidance and support of all the members, we are able to conduct the program for you all, industries and institutions. I will strive hard and try my best to ensure that GMA keeps shining the way Mr. Vinay Gupta has shown. To achieve this endeavor, I request all the members to support, to attend and participate in the program whenever they are connected. So you all know who's the best, who's the award. I invite Mr. Vinay Gupta to achieve Lifetime Achievement Award from GMA. Don't stop clapping, please. Can we have a round of applause for Vinay sir? Can we have a standing ovation for Vinay sir?
being with us. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I will invite two last awards to Mr. Anand Kumar. Mr. Anand. Agarwal, who has conducted this campaign from the day. Please be seated. I now request Mr. Rahul Agrawal to kindly propose the vote of thanks. This is the last speech of the day. I respected Mr. Abhinav Goyal, IAS CDO Goyal, and I was glad to know that he is from IIT Madras. I am also from IIT Madras. So I was delighted to know that he is IIT Madras alumni. Session Chair, President GMA, Mr. S.K. Tiwari, Senior Vice President GMA, Dr. T.R. Pandey, Honorary Secretary GMA, Mr. Charan Singh, respected GC and EC members, and all those present here. I feel greatly honored that I have been given an opportunity to propose the vote of thanks. At the outset, I express my heartfelt thanks to Mr. Abhinav Gopal. His valuable experience and views on sustainable development, SDGs, and inclusive growth for Viksit Bharat. Today he has given a new dimension that funds you do Ghaziabad growth for 2047. Your address, sir, has been very opening and extremely enlightening to the delegates. We feel honored with your presence among us today. I thank our governing council members for their guidance and the president, other office bearers and executive committee members of the GMA whose support helped me to organize a convention of this magnitude. I express my sincere thanks to all the speakers and panelists who have given such valuable inputs and views during the technical sessions throughout the day. I also thank chiefs of industries and of institutions of Ghaziabad for wholeheartedly supporting and participating in the convention. I will fail in my duty if I do not express my gratitude to the sponsors and advertisers without whose support we would not have been positioned to conduct such a convention. Gold sponsors, special thanks to gold sponsors, Shri Ramakrishna Rings Limited, IMS, APGIM, GPP and IMT. Our silver sponsors, Macromatic Grinding, RKGIT, Dawan India, APKIT, Diagnostic Automation and Control. I also thank all the advertisers who have contributed by giving advertisements in the souvenir and the directory which is released today. This directory was earlier released in 2018. So after 2018, now we have updated this directory. I thank the institutes, particularly AKGIM, IMS Lalgoa and IMS UC campus for sparing their students, and to the students who work with full dedication and volunteers in the convention. I congratulate and thank the awardees of the students, various competitions conducted during the whole year. And of course, you the delegates and audience need special mention because without you all, there could not have been this convention. I hope you found the convention very fruitful
I am sincerely indebted to you for all your presence, which has been very motivating. I am also thankful to our executive committee member, CA Anil Agarwal, for holding all press and media coverage of today's convention. My special thanks to our event partner, Mr. Siddharth Srivastava, and the printer, Mr. Ashok Atrish, who worked tirelessly to make all these slides printed material which you all see, souvenir and the directory. Special thanks to Ms. Parul Agarwal for coming to the event and comparing. She is so much committed, in spite of her holidays and her bad health, she has contributed in comparing the event. GMA, as usual, cannot miss in thanking Mr. Anand Kumar, assistant in our office, a single-man army for staying steadfast at all hours, however odd and working for smooth conduct for the convention in and out of the office. I already expressed my gratitude and the guidance to Mr. Vinay Gupta. He told me each and every step how to do this convention. And in the end, I wish to thank the management and staff of the hotel who provided continuous service to the convention. Thank you all. Just a last one word from CA Anil Agarwal ji. Please, sir. राहुल जी वो आदमी हैं लाइक ए मास्टर इन द क्लास, सब टीम को इन्होंने होमवर्क दे दिया और फिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक फॉलो किया उसको कि किसने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो टायरलेसली ही हैज़ डन दैट वर्क। उनकी वजह से ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ राहुल जी दिस कन्वेंशन इज सक्सेसफुल, इफ आई कैन से सो। तो राहुल जी, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ GMA, धन्यवाद सर आपकी एफर्ट्स के लिए। और एक बार ये स्टैंडिंग ओवेशन कंसर्न राहुल जी के लिए तो जरूरी होना चाहिए। थैंक यू राहुल जी। The successful culmination of the grand, the glittering, the mega 34th annual convention of Ghaziabad Management Association. Once again, a round of applause for all our dignitaries, for our eminent guests, for our wonderful audience, for making this section a great one. Hope to see you all once again in next year.